Good morning, Ravi sir. Good morning, Amit, as well as all the core committee members. I'm just sharing my 2 cents on this idea of 2 years term for the president. Now, there are pros and cons of anything. Let me share with you, according to me, what are pros and cons of the idea of having a president for 2 years term. Let me speak about the pros first. The advantages of having a president for 2 years at NAR India. The only one and the biggest advantage that I can see for having a president for 2 years is continuity of an agenda, continuity of a leadership. Yes, as we all say, as we all realize, as we all observe, एक प्रेसिडेंट आता है, पहला 1-2 महीना उसको काम शुरू करने में होता है, 8-9 महीने के बाद लास्ट क्वार्टर में तो फिजल आउट हो जाता है. सो practically a president who is serving 1 year term is serving only for 9 months. That has been observed by all of us over the coming years. Isn't it true? So it's a good idea to have a president for 2 years so that he can continue with his good work, he can continue with that agenda that he wants to bring forward. That's a good advantage of having a 2 years term for a president. I am not as of now seeing any other advantage of having a president for 2 years. Now let me speak on the con side or disadvantages of having a president for 2 years terms. I have perspective from 3 angles. Perspective from an individual angle, that person who is taking up that position, taking up that responsibility of becoming a president. One. Second, perspective of his association, who he is representing at NAR India. And third, perspective of NAR India as a whole, जिसका वो प्रेसिडेंट बन रहा है. फर्स्ट लेट मी स्पीक अबाउट दैट पर्सन, उसके पर्सपेक्टिव से. नो प्लीज अंडरस्टैंड, किसी को अगर प्रेसिडेंट बनना है एनआर इंडिया का तो उसको पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट बनना पड़ता है. तो 2 साल वो प्रेसिडेंट इलेक्ट रहेगा, 2 साल प्रेसिडेंट रहेगा और 2 साल आईपीपी रहेगा. 6 साल एक आदमी के लाइफ का वो ही विल बी एंगेज्ड इन दिस लीडरशिप पोजीशन इफ ही वांट्स टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ एनआर इंडिया. नो प्लीज अंडरस्टैंड, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव अ लुक अराउंड, जो आज तक प्रेसिडेंट बने लास्ट कई सालों में, दे आर ऑफ दैट एज ग्रुप ऑफ 45 to 55 के बीच के लोग होंगे. मोस्ट ऑफ देम जनरली उनको एज ए ब्रोकर अपनी लाइफ में काम करके शुरू करके 15, 20, 25 साल हुए होंगे. समवन हु स्टार्टेड एज ए ब्रोकर एट लोकल लेवल, 10, 15, 20 साल उसको एस्टैब्लिश होने में हो गया इन हिज सिटी एज ए लीडिंग रियल एस्टेट कंसल्टेंट और रियल्टर और ब्रोकर. देन लास्ट 5, 10 साल, 15 साल उसको लोकल लीडरशिप में एज वेल एज एनआर इंडिया की लीडरशिप में, तो 15-20 साल का उसको टर्म हो जाता है. इसीलिए वो 45-50 साल के मोस्ट ऑफ द आपको दिखेंगे आज तक के प्रेसिडेंट्स. एट दिस स्टेज ऑफ हिज लाइफ ही इज एट द प्राइम ऑफ मेकिंग द बेस्ट ऑफ वॉट एवर एक्सपीरियंस दैट ही हैज एक्यूमुलेटेड. 45-50 साल का ब्रोकर रियल एस्टेट कंसल्टेंट हु इज डूइंग ग्रेट एट लोकल एट हिज सिटी और रीजन, ओनली ही बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ हिज सिटी और local association, only then he gets a chance to become president of NAR India. He is at that prime time of his life when he is going to make the best of. पैसा कमाने के एंगल से अगर आप देखोगे तो he is at the best time of his life. Now NAR India का leadership is a time consuming, is a mind consuming position, responsibility, जो ऑन एन एवरेज 8-10 घंटा आदमी का दिन का ले लेता है, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट. आप बोलोगे नहीं नहीं मैं 2 घंटे ही काम करूंगा रेगुलरली कंसिस्टेंटली, दिन का 2 घंटे टाइम दो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं. आई डोंट एग्री टू दैट. उसका माइंड स्पेस 50% से ज्यादा, 60% से ज्यादा, 70% से ज्यादा यूज होता है इस पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैटर करने में. एट द प्राइम ऑफ हिज करियर, 6 years, don't you think that it is going to be very difficult for that person? I think that
many, even fewer people will come ahead to take this responsibility going ahead अगर ये होगा तो. This is from that personal perspective, person's in perspective. Another thing, एक लोकल, अच्छा एक बात रहेगा, 6 साल तो उसको बनने के बाद लगेगा. प्रेसिडेंट इलेक्ट 2 साल, प्रेसिडेंट 2 साल, आईपीपी 2 साल, बट वो बनने से पहले शायद हमारा ही कुछ एक रूल है कि 2 साल तो उसको जीबी में सर्व किया हुआ होना चाहिए, तभी कोई प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर सकता है. तो 6 और 2 8 साल. आई एम सरप्राइज्ड. थिंक अबाउट दिस पॉइंट. सेकंड पॉइंट, नाउ लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एसोसिएशन whom he is representing. NAR इंडिया इज अ कॉन्फेडरेशन. जो प्रेसिडेंट बनता है वो किसी लोकल एसोसिएशन से ही आता है. तो क्या एक एसोसिएशन को एक आदमी 6-6 8-8 साल तक रिप्रेजेंट करेगा? एक आदमी, उसका रिप्रेजेंटेटिव. दिस इज वेरी मच अगेंस्ट दैट आइडिया ऑफ रोटेशनल लीडरशिप. एक आदमी, मतलब कोई एक एसोसिएशन को एक आदमी 6 साल 8 साल तक रहेगा. आई फाइंड दिस, आप लोग डिस्कस करो, या सबको अपने अपने लोकल एसोसिएशन में जितने कोर कमेटी के 8-10 मेंबर्स होंगे, 15 मेंबर्स होंगे, थिंक अबाउट इट कि सपोज आपको बनना है प्रेसिडेंट, तो आप अपने एसोसिएशन को 8 साल तक रिप्रेजेंट कर पाओगे, या आपका एसोसिएशन अलाउ करेगा, या क्या करना चाहिए? एक आदमी एक एसोसिएशन को 8-8 10-10 साल तक रिप्रेजेंट करता है. मुझे तो वही उधर ही कुछ बेसिक फॉल्ट नजर आ रहा है is in this entire structure. Third point, now look at it from an angle of NAR India. Point number 1, ये जो स्ट्रक्चर है हमारा कि NAR इंडिया का जो प्रेसिडेंट बनता है वो पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट बनता है. तो जब प्रेसिडेंट इलेक्ट बनता है तब वो ही हैज टू होस्ट एन कन्वेंशन. आप बोलोगे ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है. आई एग्री विद यू, बट दिस हैज बीन, इट इज एन अनरिटन रूल. मतलब दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड. आज तक 1-2 एग्जाम्पल्स आप दोगे? नहीं, वो क्या बैंगलोर ने किया था जब हैदराबाद का बन रहा था, सचिन श्रॉफ बन रहा था तब दिल्ली ने किया था. दोज आर एक्सेप्शंस, एंड दोज आर एक्सेप्शंस. वी नो द रीजंस बिहाइंड दैट, वी नो दैट टू. तो 2 साल के टर्म्स में, दूसरी साल के टर्म में कन्वेंशन कौन करेगा? NAR इंडिया का. हु इज गोइंग टू डू होस्ट दैट NAR इंडिया कन्वेंशन इन द नेक्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर ऑफ a president's term? This is a big question. Another angle of NAR India, एक प्रेसिडेंट 2 साल का टर्म इज गुड थिंग अगर वो प्रेसिडेंट अच्छा काम कर रहा है तो. उसका एवरीथिंग इज गोइंग गुड एज पर द एजेंडा, कंटिन्यूटी है, सब कुछ है, डिस्टर्ब न्यू राइट्स अ गुड थिंग. बट सपोज नहीं अच्छा कर रहा है तो 2 साल बिगड़ेंगे NAR इंडिया के. फिर आप बोलोगे नहीं उसको बीच में से हटाओ, इसको why to get into all those things? These according to me are cons or disadvantages of having 2 years term for a president. I personally feel that it's an honorary job. Someone becoming a president of NAR India or any association or any professional body is an honorary job. उस आदमी को देना पड़ता है, उसको जो मिलता है ना उससे बहुत ज़्यादा उसको देना पड़ता है. सो 1 साल के लिए इट इज़ प्रॉपर. और 1 साल भी वो जब प्रेसिडेंट बनता है तब वो कंटिन्यूटी का हम अगर बात करेंगे तो प्रेसिडेंट इलेक्ट, प्रेसिडेंट एंड IPP 3 साल का कंटिन्यूटी है. अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन है अमॉन्ग्स द 2-3 लीडर्स जो कंटिन्यूअल टाइम में आने वाले हैं, एक के बाद एक, अगर उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अगर वो लोग अच्छा प्लानिंग करते हैं तो एक एजेंडा बनता है जो 3-3 साल का हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन हो सकता है. कंटिन्यूटी ऑफ एजेंडे का भी कंटिन्यू रह सकती है. मेरे को लगता है राय देना, आइडिया बताना बहुत ईजी है. नाउ लेट मी शेयर विथ यू कि क्या करना चाहिए. अगेन दिस आर माई 2 सेंट्स. There are many more knowledgeable, experienced and senior people. You can always put forth your ideas. I am sharing my 2 cents. क्या होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि क्या होना चाहिए में 2 चीज़ें हैं. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक
प्रेसिडेंट आके अच्छा डिलीवरी करे ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नंबर 1, रिमूव द मंकी ऑन हिज बैक. Remove the responsibility of hosting convention from a president elect. उसको हटाओ. उसको हटाओ तो फिर क्या करेंगे? एनएयर इंडिया को कन्वेंशन करना चाहिए, ना कि उस प्रेसिडेंट को. उस कैसे कर सकते हैं वो, आई हैव सम आइडिया विच आई कैन शेयर इन नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट. बट ये जो है ना, इट इज किलिंग. अभी हमने गोवा जीबी में देखा. We spoke, all spoke. Now look at the plight. Amit Chopra has contributed, boss, so much. I cannot even मतलब think कितने लोग रेडी होंगे इस तरह का कंट्रीब्यूशन करने में, इतना कंट्रीब्यूशन करने में. लुक एट द प्लाइट. अच्छा चलो छोड़ो, पैसा निकालना पड़ा, नहीं निकालना पड़ा है तो भी एक प्रेसिडेंट का लाइफ में से 1 साल निकल जाता है और वो अपना पर्सनल गुडविल यूज कर करके स्पॉन्सरशिप लाता है. पर्सनल गुडविल से ही स्पॉन्सरशिप का पैसा आता है और उसी से कन्वेंशन बनता है. बीट रवि वर्मा, बीट फारूक महमूद, बीट एनीबडी यू टेक, जो आज तक स्पॉन्सरशिप लेकर आए हैं, अपनी पर्सनल गुडविल को उन्होंने इनकैश किया है और स्पॉन्सरशिप लाए हैं. ये बंदर को उसकी बैक से हटाना पड़ेगा, तभी एक प्रेसिडेंट अच्छी तरह से काम कर पाएगा. उसका समय बचेगा जो अच्छे चीज़ों में वो यूज कर पाएगा. अच्छा, अनदर थिंग, ये 2 years के टर्म्स के लिए आई हैव ए सजेशन दैट rather than having a 2 years fixed term for any president, we should have a flexibility, probability of continuing a president who is doing a great job for 1 more year. प्रेसिडेंट का टर्म 1 साल का ही होना चाहिए, बट हमारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए. आफ्टर 3 quarters, if he has done a great job in the first 3 quarters, the GB can decide on allowing the president to continue for 1 more years. Now ये कैसे? मेरा सजेशन है कि हमको रादर प्रेसिडेंशियल इवैल्यूएशन का एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए. ऑन प्री डिफाइंड पैरामीटर्स वी शुड बी एबल टू इवैल्यूएट हाउ दैट लीडरशिप टीम is working that year. Suppose on 1 to 10 का rating and there are 7 to 8 parameters that we have predefined. Every presidential का term evaluate होना ही चाहिए. ये चीज हम लाए कि नहीं लाए तो भी इवेल्यूएशन ऑफ प्रेसिडेंशियल टर्म तो लाना ही चाहिए. एंड अगर वो 8 स्कोर करता है आउट ऑफ 10 ऑन एन एवरेज, तो द जीबी कैन आस्क the president to continue for 1 more year. Yes, I agree कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्ट होगा इसका 1 साल आगे और जाएगा, बट देन वो एक ही बार होगा, 1 ही साल जाएगा आगे. 6 साल 8 साल किसी का नहीं जाएगा. These are my 2 cents. I wish that you sincerely listen to this entire video at least once or twice or thrice and put some mind on this. Thank you so much.